Just introduce about what the Google provides us or what the Google gives us. So we start from Google Apps. So some year before, the Google created their own Gmail account, but this Gmail account has become one of the top providers of email services around the world. But means ये जो Gmail account है, it is not just an only a simple email account. It comes with lot of features, lot of apps. So it is not only for the private use, but also for education institutions and business also. But Gmail account is much more. एक्सक्यूज मी सर, than कुणाल just. सर. येस, मी थोडा ना आपण व्हिडिओ तुमचं ऑफ करून द्या, म्हणजे ऑडिओ क्लिअर येईल. मधात ब्रेक होतो आहे. मॅडम व्हिडिओ ऑफच आहे. व्हिडिओ ऑफ आहे ना? ओके, येस येस, बँडविड्थ प्रॉब्लेम असल्यामुळे व्हिडिओ ऑफच केलाय. ठीक आहे सर, ठीक आहे. कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. Okay. Okay. So back to that means that is Gmail. So if you have one, make sure that you can take advantage of its full potential of Gmail. Means Gmail में जितना ज्यादा पोटेंशियल है, ये Gmail हमें इतने सारे एप्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हम सिर्फ उसे ईमेल तक के सीमित ना करते हुए उसके जो एप्स उसने प्रोवाइड किए, जो फीचर्स उसने दिए, उसके भी पोटेंशियल्स हमने फुल यूज करना चाहिए. So the look at the different apps. That is, we starts with this first. That is Google Drive. And in this Google Drive, this Google Drive provides us 15 GB of disk space to host and store all kinds of files, photos, videos, and documents. So therefore, this is first app of Google that provide us, that is associated with Gmail. This is the triangular shape, means that is the Google Drive. And with this association, we going towards the documents. That Google Documents. With this Google Documents, we can use this web-based Office suite. That is, it is very simple but powerful word processor, and you can write text documents and use Google search to find relevant information for the topic you are working in without leaving your document. So this is the best advantage of this. जैसे अगर हम सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हुए क्या होता है कि अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हमें उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. मिनिमाइज करने के बाद हमें दूसरे टैब पे जाना पड़ेगा. टैब पे जाने के बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी. जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉपी करके फिर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. बट रिगार्डिंग गूगल वर्ड और रिगार्डिंग गूगल डॉक्स, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है कि हमें उसे हम उस डॉक्यूमेंट को वहीं के वहीं या उसी डॉक्यूमेंट में हम सर्च कर सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन सर्च की है वो इन्फॉर्मेशन हम उस डॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं विदाउट लिविंग दैट डॉक्यूमेंट. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ गूगल. आफ्टर दैट वी हैव द गूगल शीट. This sheet is a handy spreadsheet program to organize your data and work with your tons of formulas for your calculations. That is similar to, again, Microsoft Excel. After that, the G Suite also provides us Google Slides. So Google Slides means what? It is similar to our PPT presentation or Microsoft PowerPoint presentation. And in Google Slides, we can create a stunning presentations like this presentation I already created in PowerPoint presentation. So like that, we can create a stunning and interactive presentations with the help of this Google Slide. In fact, the Google Docs, Sheets and Slides can all be easily, means ऐसा नहीं कि सभी Google Docs, Google Sheets, Google Slides, you can directly convert it into any standard file format using this Google's feature. So this is another advantage.
that we can convert any file with any format. Means for example, अगर Google Docs है तो हमें उसे directly PDF में convert कर सकते हैं हम with the help of this Google Apps. After that, we are moving forward towards the Google Forms. अब ये Google Form तो हमें means we are from the teaching fraternity, और इस सिचुएशन में हमने Google Form इतना ज्यादा यूज किया है कि सभी को पता है कि क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस या टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, उनके क्वेश्चंस या उनका एनालिसिस करने के लिए, सो वी ऑलरेडी डन. और सबसे बड़ी बात तो हमने जो जितने वेबिनार्स, सेमिनार्स या जो भी क्रिएट किए, तो उसमें हमने ये गूगल फॉर्म का ज्यादा यूज किया है फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज, फॉर द सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज. सो गूगल फॉर्म्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, और हम गूगल फॉर्म आगे देखेंगे किस तरह क्रिएट होता है, क्या क्या इसमें एप्स है वो भी हम देखने वाले. सो इन दिस means with the help of this Google form, we can create different types of questions to make surveys, and also gather information from the students, from our faculties. And this Google form also gives one advantage, that it provides us a spreadsheet, and with the help of that spreadsheet we can analyze the submitted data, and with the help of that submitted data we can analyze and provide some results or make a conclusions on that data. Now this is known, this is a Google Calendar, और इस कैलेंडर का यूज ऐसा है कि हमने इसमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन सेव करके रखी है, या वी कैन ऑर्गेनाइज आवर मीटिंग्स, लेक्चर्स और इवेंट्स, एंड इट कैन प्रोवाइड आवर नोटिफिकेशन and inviting our contacts, and with the help of this we can never forget any appointment again. So it always remind us कि which आज हमें कौन सा लेक्चर है, कितने टाइम पे है. So with the help of this Google Calendar we can organize our events. After that, this is a Google app, Google Groups. This Google Groups, we can create this Google group of our contacts and use them as a mailing list or as a base of sharing documents. Means हमारे contacts में जितने भी लोग हैं, हम उनका एक ग्रुप बना सकते हैं, और हमें एक कॉमन इन्विटेशन भेजना है, तो with the help of this we can send the common invitations. Now this is site. That is means best feature provided by the Google. With the help of this we can create our own website. You can also create group, you can also create a website. That is, it is very simple and sophisticated way to create our web pages with the help of this Google site, and without any coding, without any formal knowledge, we can all go through this app, and we can create our website with the given templates. Templates already provided by the Google, how your website looks. And now this is Google Hangouts. It is similar to our WhatsApp. We can communicate in real time with our friends, students, and either through audio or texting messages or video calls. And finally, the upper section, this is a B, is similar to B, and this is a yellow symbol of B or slightly brown. So this symbol indicates that the Google also provide us, or Gmail account also provide us blog. So we can write our blog on our own topics of our interest, and means हम personally भी खुद भी write कर सकते हैं, or we can write in collaboration with others also. And this is very good for our teacher fraternity. They can write their own, means if the person from language or arts background, they can create their blog and writing, means writing poems or any type of articles with the help of this blog, and it is already publicly. After that, this is very important component. Everyone knows that this component, because this is Google Classroom, and I think every teacher uses this in this pandemic situation, and we can use this for the institutions, and it is very friendly and friendly learning site when teachers can interact with the students, setting and marking assignments, integrating resources and interactive contents. So this is all
regarding Google, and we start from Gmail account and we end on Gmail account. So therefore Gmail account is just not an email account. ये हमें इसके साथ इतने सारे जो एप्स है जो जीमेल अकाउंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है, और इन एप्स के साथ हमें कोप करना है, कॉपरेट करना है और इसे सीखना है। तो आइए आप देखते हैं कि गूगल एप्स का तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द गूगल फॉर्म्स। So what are the applications of Google Forms? We can survey, we can take feedback, we can evaluate assignments, program proposals we can send with the help of program proposals, RSVP, then we can use this Google form for the registration purpose, reservations purpose. We can also conduct with the quiz with the help of this Google form. Now, how this Google form create? This is the first slide. जैसे यहाँ पे जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं, जैसे हम गूगल अकाउंट पे जाते हैं तो गूगल अकाउंट पे जाने के बाद these are the 9 डॉट्स. We can click on this 9 डॉट्स. यहाँ पे हमें क्लिक करने के बाद we got this type of the setup, और वहां क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं. उन ऑप्शंस में इस तरह का एक ट्रायंगुलर ऑप्शन ओपन होता है. इस ट्रायंगुलर ऑप्शन के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं, so after clicking on this triangle we got this type of the dashboard. और इस डैशबोर्ड में यहाँ पे लिखा है न्यू, इसके बाद माई ड्राइव, दिस इज शेयर्ड विथ मी, रिसेंट, स्टार्ट, ट्रैश. सो वी आर क्लिकिंग ऑन दिस माई ड्राइव. ड्राइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो है न्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द न्यू, एंड न्यू, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस न्यू वी हैव these are the options. So first is Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms and more. So we are clicking on the more, Google Forms. Google Forms के ऊपर क्लिक करने के बाद we have opened such a type of the template. So this is a blank template. Then this is already Google Form provides us the template in which format we have to create a form. मीन्स हमें उसकी क्विज कॉन्टेस्ट डिजाइन करना है, या हमें कोई इनविटेशन देना है, या हमें कोई रजिस्ट्रेशन करना है, या तो हम ये जो फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, ये फॉर्म एज अ सर्वे फॉर्म है. सो दिस इज द टेम्पलेट दैट प्रोवाइडेड ऑलरेडी बाय द गूगल. नाउ मूव ऑन टू, वी स्टार्ट फ्रॉम द ब्लैंक टेम्पलेट, और ब्लैंक टेम्पलेट इस तरह का दिखेगा. दिस इज अनटाइटल्ड फॉर्म. जैसे हम उसी के ऊपर क्लिक करते हैं, सो दिस इज द फॉर्म. नाउ this form contains the such type of the questions. In this is the multiple choice questions. This triangle or this puzzle symbol is called as add-ons. This is our view form. This is settings. This is send tab. So this is the dashboard. That is a form interface. Now creating a form from a scratch. So this is untitled form. इस अनटाइटल्ड फॉर्म में हमें उस फॉर्म का हम नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल FYPSC क्विज और FYPSC टेस्ट. और अगर आपको कोई मीन्स वेबिनार या सिंपोजियम कंडक्ट करना है तो हम यहाँ उस फॉर्म का नाम दे सकते हैं. आफ्टर दैट दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज सेटिंग, दिस इज प्रीव्यू, एंड दिस इज इफ वी वांट दैट the question is compulsory or attempted required, so therefore this is the required response. अगर हमने इसे ऑन कर दिया है या enabled कर दिया है तो वो क्वेश्चन को हमें या जो भी पार्टिसिपेंट होगा वो क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा. उसको अटेम्प्ट किए बिना वो सामने नहीं जा पाएगा. Now this is the adding elements, how we add the questions, how we add different types of questions, headers, images, videos. So this tab, that is a plus symbol, ये जो plus symbol है, this is for adding questions. अगर हमने already क्वेश्चन ऐड किया है, हमें और एक क्वेश्चन ऐड करना है, तो with the help of this plus sign we can add the question. Now this symbol indicates that this is a header or text.
This symbol is for the images. We can add the images in our questions with the help of this tab. This is the video symbol. So we can add video also in our questions or in our Google form. This is for the new section. This tab indicates that we can go for the new section or new page. Now, how we adding the elements or how we add the questions. So the questions adding in such a types. Look at this. This is the short answer question. We can make this as a paragraph question. If the form is designed for the quiz contest, then there should be the multiple choice question. Then there should be the check boxes, then drop down. We can upload our file with the help of this file upload. Then there should be a Likert scale or linear scale. Then there should be multiple choice grid type question. Then checkbox grid. So we can ask different types of question in Google form. We have lot of choices which type of question we can add. After that, there should be the settings. This is very important setting for the quiz contest or for the testing test purpose. Means अगर हम स्टूडेंट्स के बीच में या स्टूडेंट्स की टेस्ट ले रहे हैं या कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो वो स्टूडेंट ने एग्जाम अगर चालू है और उसने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद अगर वो स्टूडेंट चाहता है कि उसके मार्क्स उसने देख लिए और मार्क्स देखने के बाद उसे लगता है कि हमारे मार्क्स कम है, तो वो दोबारा वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है. सो देयरफॉर इफ ये लिमिट टू वन रिस्पॉन्स ऑप्शन अगर हमने ऑन कर दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन द स्टूडेंट कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन वन टाइम्स. वो एक ही टाइम अटेम्प्ट करेगा और उसका वो फाइनल स्कोर हो जाएगा. क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये भूल जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेटिंग्स कि हमें इसको लिमिट टू वन रिस्पॉन्स करना है और हम टेस्ट अलॉट कर देते हैं. फिर एक ही स्टूडेंट 2, 3 या 4 बार वो टेस्ट अटेम्प्ट करता है और वो स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश करता है. So therefore, this is very important option at the time of taking the test with the help of Google Form. We can enable or we can tick this limit to one response option always for the test purpose, for the exam purpose. Okay. At the send and share form. So there are 3 options. This is first, we can email this form on particular email address. Then this is the next option. This is the link option. And this is the embed option. So means in many conditions we have the group. जैसे हम व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और FY, SY, TY. सो इन दिस वे द ईमेल ऑप्शन उस टाइम में उतना वर्क नहीं करता है क्योंकि हमें सबके ईमेल्स लिखने पड़ेंगे. यहाँ पे जो लिखा है 2, ये इस 2 के सामने हमें सबके ईमेल्स लिखने पड़ेंगे और लिखने के बाद उन्हें वो सेंड करने पड़ेंगे. तो अगर हमारे क्लास में 30, 40 या 45 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स अगर है तो हम सबके ईमेल लिखते नहीं बैठेंगे. सो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऐसा है कि दिस इज सेकंड ऑप्शन. हमें इसको लिंक को कॉपी करना है और लिंक को कॉपी करने के बाद उस ग्रुप में पेस्ट कर देना है. जो भी हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें पेस्ट कर देना है. तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज बेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन. After that, we can changing the background with the help of this select palette tool. We can change the theme with the theme option of the Google form. Now, students ने टेस्ट सॉल्व कर लिए या जो भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है सब हो चुका है. सर जस्ट मिनट. क्या सर उसमें जो थर्ड ऑप्शन बताया था आपने एम्बेडिंग, उसका थोड़ा सा बताइए सर. ओके सर. हेलो. हाँ जादव सर. यस सर एम्बेड ऑप्शन जो है, यस सर, एम्बेड ऑप्शन जो है सर कि अगर हमें मीन्स लिंक नहीं भेजनी है और हमें ये एम्बेड ऑप्शन जो है वो अगर मीन्स दिस ऑप्शन इज इन HTML फॉर्मेट कि अगर हमें मीन्स वो पूरा का पूरा कोडिंग लेके कहीं पेस्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. लेकिन वो कोडिंग जो रहेगा वो कोडिंग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा और उसके लिए पर्टिकुलर ब्राउजर लगेगा. जैसे कि लिंक में या तो ईमेल जो ओपन करते हैं हम उसमें कोई फॉर्मेट नहीं लगता, वो जनरल फॉर्मेट में होता है.
ये जो ऑप्शन है ये एम्बेड फॉर्मेट मीन्स व्हाट, इट्स अ एनकोडेड फॉर्मेट. ओके सर. Yes, yes, thank you. ओके आफ्टर दैट स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर जो है वो या टेस्ट जो है या फॉर्म सबमिट कर दिया है. सबमिट करने के बाद देयर आर द ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सेस. हमने जो कलेक्ट किए है वो रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करने के बाद दिस इज द प्लस साइन और एक्सेल साइन. दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिएट स्प्रेडशीट ऑप्शन. With the help of this create spreadsheet option, we can download this spreadsheet and we can analyze कि कितने लोगों ने वो टेस्ट प्रॉपर सॉल्व किए हैं या नहीं किए. और विद द हेल्प ऑफ दिस मीन्स दिस ब्राउन कलर सिंबल, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एनालाइज कि हर एक स्टूडेंट को कौन सा क्वेश्चन हार्ड गया है, कौन सा क्वेश्चन इजी गया है. और हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टेस्ट किस तरह गई है, कि बहुत ही मीन टफ गया है क्वेश्चन पेपर या बहुत इजी गया है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्पॉन्सेस वी कैन एनालाइज एंड आफ्टर एनालाइजिंग हम ये कर सकते हैं कि भैया जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर इजी गया है वो हम उनको कंसिडर कर सकते हैं एडवांस लर्नर, और जिनको बहुत हार्ड गया है उन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं स्लो लर्नर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल फॉर्म वी कैन एनालाइज अवर स्टूडेंट्स. So we directly go on to the hands-on. Okay, Dharmik madam, if anyone any questions, then please ask. Yes, sir. We will start with the demonstration, and if in demonstration they will feel any difficulty, they can ask. Okay. Okay, friends. Now you note down the steps for creation of Google form. Okay, first of all, हम कुणाल सर स्क्रीन विजिबल नहीं आहे, ब्लॅक कलरच दिसतंय. फ्रेंड्स आपको कैसे दिख रहा है? या मैडम समझ Not गया. visible. Yes, yes. Wait. Yes. Now visible madam. Yes, sir. Yes, now it is visible. Please start. Okay, we are in our Gmail account and here is the 9 dots. On this, clicking on this 9 dots, Screen is not this is the visible. Sir, it Screen is is not visible. sir, it is visible. पूजा मैडम येईल थोड़ा वेळाने, आएगा वो. मेरे तरफ तो विजिबल है, बाकी लोगों को दिख रहा है? Yes, ma'am, it is Yes, visible. yes, No, yes. madam, it's now we can see. Yes, it is the buffer time. It depends upon your connectivity. Sir, please continue. okay madam. After clicking on this 9 dots, this is a symbol. The name is drive. There's a triangular symbol. We can click on this symbol. So after clicking on this symbol, we came in the drives. So this is a new tab. Look at this. This is a new tab, and on this new tab, just click on this new tab. This is a Google Doc option, Google Sheets option, Google Slide option, and Google Form option. So now we are clicking on this Google Form option. Takes time. Okay. So this is a Google Form interface. I look at this is untitled form. So we can do the title. This यहाँ पे हमें जो भी टेस्ट कंडक्ट करनी है या जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो उसका जो भी टाइटल रहेगा हम यहाँ देंगे. तो फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग दिस ICT कोर्स
Now, after that, the first is name. Participant. So this is a short answer question. Now, if I want to add the question, so I'm clicking on this plus sign, and name of the participant is a compulsory question. So therefore, this is a required option. I'm enabling this required option. क्योंकि नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट हमें जरूरी है, विदाउट नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो दैट्स व्हाई इट्स अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन. दैट अगर हमें क्वेश्चन ऐड करना है तो हम इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हैं. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन देयर इज अनदर क्वेश्चन. पार्टिसिपेंट्स का नाम तो हो गया है. अभी उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम, another question. So I think फॉर्म तो सभी को पता है किस तरह बनाया जाता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल दे देता हूँ कि विच word. So this is क्वेश्चन. फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं फिर गूगल डॉक्स, दैट slide, then option you can click on this. Buffering problem, Google right. ओके देन इस तरह के हम ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं. और यहाँ पे इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम देते हैं उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन दिया उसमें से एक जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन हमने प्रोवाइड किए वो एक ऑप्शन तो हमारा राइट ऑप्शन होगा, और राइट ऑप्शन हमें देना पड़ता है. तो राइट ऑप्शन देने के लिए हमें यहाँ पे इस सेटिंग में जाना पड़ता है और मेक इट एज अ क्विज. सो देयरफॉर दिस प्रेजेंटेशन क्विज इज जनरल. सो देयरफॉर दिस हमें यहाँ पे इसको मेक इट एज अ क्विज करना है. और उसके पहले जनरल सेटिंग्स में देखते हैं हम. देखिए यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स. वंस अगेन आई एम कैंसल दिस. ये जो सिंबल है दिस इज अ सर्कुलर सिंबल. यहाँ पे लिखा है सेटिंग्स, तो हम इस सेटिंग्स में जाना है. ये ब्लू कलर के बाजू में जो सिंबल है, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं. सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद वी हैव दिस टाइप ऑफ द इंटरफेस दैट इज जनरल प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस. तो इस क्विजेस के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है मेक दिस क्विज. सो दिस फॉर्म मेक इट एज अ क्विज फॉर्म. सो देयरफॉर हमने इसको मेक इट एज अ क्विज कर दिया है. जैसे हम मेक इट एज अ क्विज करते हैं वी हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस ओपन, दैट इज इमीडिएटली रिलीज द ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन. ये ऑप्शन हमने ऑन रखा है. उसके बाद स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को मिस क्वेश्चन दिखने चाहिए ही नहीं चाहिए. उसके बाद दिस इज फॉर द मिस क्वेश्चन, देन करेक्ट आंसर, देन पॉइंट वैल्यू. ओके, तो हमें इसे सेव करते हैं हम. अब सेव करने के बाद नाउ लुक एट दिस.
ये जो आंसर की ऑप्शन है, ये आंसर की ऑप्शन पहले नहीं था, जैसे ही हमने इसे क्विज कर दिया है, सो वी गॉट दिस आंसर की ऑप्शन। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है वैसे राइट क्लिक ग्रीन कर देता हूँ। देखिए ग्रीन हो चुका है। ग्रीन होने के बाद इस क्वेश्चन को कितनी मार्क्स देने हैं, 1 2 3 जो भी है हम यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं। और मार्किंग देने के बाद यहाँ पे लिखा है डन। ओके, सो दिस इज डन। सो इन दिस वे हम हर क्वेश्चंस को मार्क्स दे सकते हैं। और हर क्वेश्चंस को मार्क्स देने के बाद मार्क्स हम तभी देंगे जब हम इस फॉर्म को एज अ क्विज फॉर्म करेंगे, एज अ क्विजर करेंगे तब। ओके, सो अब ये फॉर्म बन चुका है सपोज फॉर एग्जांपल। और ये फॉर्म बनने के बाद एवरीवन नोज दैट दिस इज अ कस्टमाइज थीम ऑप्शन। तो हम कस्टमाइज थीम के ऊपर जाते हैं। कस्टमाइज थीम के ऊपर जाने के बाद ये जो कस्टमाइज थीम ऑप्शन है यहाँ पे था, यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दिस इज द चूज इमेज ऑप्शन। हम इस चूज इमेज ऑप्शन में जाने के बाद ये देखिए हमें हमारे फॉर्म में जिस तरह की इमेज चाहिए हम उस तरह की इमेज ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, क्लिकिंग ऑन दिस और सिलेक्टिंग दिस इमेज। फॉर एग्जांपल ये इमेज ले लेता हूँ। और जैसे मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन आ जाता है। तो दिस इज इंसर्ट। नाउ ये इमेज यहाँ पे आ गई है। मीन्स जो थीम ऑप्शन था, विद द हेल्प ऑफ थीम ऑप्शन वी कैन अपलोड द इमेज। After that, we can see our form, how it looks like before sending the form. So with the help of this preview option, हम इस फॉर्म को भेजने के पहले या सेंड करने के पहले हम ये फॉर्म दिखता किस तरह वो भी देख सकते हैं with the help of this preview option. Look at this. This form is like this. इतना हमने बनाया है इसे। After that, this is a send option. Okay? मैंने पहले ही बोला है कि सेंड ऑप्शन में दिस इज ईमेल ऑप्शन, दिस इज लिंक ऑप्शन। तो ये जो लिंक है ये लिंक हम कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्टन यूआरएल है। ये यूआरएल बहुत बड़ा है तो इसे हम शॉर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन शॉर्टन यूआरएल। और इसे छोटा करने के बाद वी कैन कॉपी दिस। और ये कॉपी करने के बाद हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स के वहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गया गूगल फॉर्म। लेकिन इस गूगल फॉर्म के साथ हमें क्या क्या एडवांटेजेस या क्या क्या एड ऑन्स आते हैं वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी ये तो सभी को पता है कि सर्टिफाई एम, विद द हेल्प ऑफ सर्टिफाई एम हम सर्टिफिकेट रिलीज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को भेज सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स को भेज सकते हैं। और अभी जो मीन्स सभी ऑनलाइन वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन सिंपोजियम कंडक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ऑनलाइन एफडीपीस भी हो रहा है। तो रिगार्डिंग दैट everyone should fill the feedback form, or after filling the feedback form they got the certificate. So they got the certificate with the help of this certify m add-on. तो ये add-ons क्या है, सबसे पहले हम add-ons देखेंगे। add-ons means what, कि जैसे कि हमने अगर ये फॉर्म बना लिया है और ये फॉर्म बनाने के बाद ये फॉर्म बन गया मीन्स व्हाट, इट्स जस्ट लाइक एन केक। केक बन चुका है और उस केक के ऊपर जो चेरी का जो चेरी हम डालते हैं दैट इज गिव द डेकोरेशन। सो एड ऑन इज लाइक दैट कि फॉर्म तो बन चुका है लेकिन फॉर्म के साथ ये एड ऑन्स का क्या काम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एड ऑन्स आते किस तरह है, फिर उसका यूज देखेंगे हम। तो देखिए इन 3 डॉट्स के ऊपर हमें क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस 3 डॉट्स वी हैव दिस ऑप्शंस, दिस इज कॉल्ड एज एड ऑन्स ऑप्शंस। तो क्लिक ऑन दिस एड ऑन ऑप्शन। तो हमने जो सर्टिफिकेट्स पार्टिसिपेंट्स को देने रहते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ सर्टिफाई एम एड ऑन हम वो सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं। सो लुक एट दिस, दिस आर द एड ऑन, दैट इज अ गूगल वर्कस्पेस। और यहाँ पे जनरेट डॉक्यूमेंट्स करके ऐड, तो बहुत सारे एड ऑन्स है। लेकिन एज अ टीचर फ्रेटर्निटी हमें कौन से एड ऑन्स यूज करने हैं वो सबसे मेन थिंग है। एड ऑन्स तो बहुत सारे हैं लेकिन रिगार्डिंग दिस फॉर्म एंड रिगार्डिंग our educational background, so we have the following add-ons. Certify M तो मैं मीन्स बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं
दैट इज फॉर्म प्रेजेंटर प्लस टाइमर, या तो टाइमर प्लस प्रॉक्टर। ये टाइमर प्लस प्रॉक्टर जो एड ऑन है, दिस इज द बेस्ट एड ऑन। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एड ऑन, रिफ्रेश कर देता हूं। This is timer plus proctor. So now timer plus proctor means what? कि हम जब एग्जाम लेते हैं, एग्जाम जब हम लेते हैं तो हमारी जो एग्जाम होती है वो हमें पता नहीं रहता कि वो गूगल फॉर्म जब उसने ओपन किया है, तो गूगल फॉर्म ओपन करने के बाद वो दूसरा टैब ओपन करता है और दूसरे टैब में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट गूगल में सर्च करता है और उसका आंसर लिख देता है। दिस इज वन वे। तो इस तरह वो मीन्स स्टूडेंट्स जो होता है वो चीट कर सकता है। तो ये टाइमर प्लस प्रॉक्टर का काम क्या है कि ये टाइमर प्लस प्रॉक्टर का काम ये है कि एक तो पहले ये टाइमिंग देगा कि विद इन 1 आवर और विद इन 60 मिनट्स और विद इन हाफ एन आवर ये पेपर कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद भी अगर वो अटेम्प्ट करता है तो ऑटोमेटिकली ये गूगल फॉर्म क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि अगर वो दूसरा टैब ओपन कर रहा है या दूसरा सेक्शन ओपन करके देख रहा है, तो ये जो अनदर टैब ओपनिंग है ये उसको ब्लॉक कर देता है, वो टैब ओपन नहीं करने देता। अगर उसने टैब ओपन किया है तो वो हमें रिपोर्ट करेगा कि ये इतने टाइम में इसने टैब ओपन किया है। उसके बाद अगर उसके बाजू में कोई उसका फ्रेंड बैठा है या तो कोई मीन्स उसे हेल्प करने के लिए बैठा है, तो अगर उसकी आईज की जो मूवमेंट्स है वो आईज की मूवमेंट्स भी डिटेक्ट करता है। सो ये बहुत ही अच्छा एड ऑन है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन इन प्रॉपर वे। जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते हैं, ये उसी तरह का एड ऑन है कि वो गूगल फॉर्म जब हम सेंड करने के बाद ये टाइमर प्लस प्रॉक्टर उसी तरह उस स्टूडेंट को मॉनिटर करेगा। आता ते कोणते करावं लागलं आता लिंकवरच जावं लागेल. Sorry. Link इंगोले सर, सर मी त्यांना So- म्यूट केलं, त्यांचा व्हॉइस येत. so in this way with the help of this timer and proctor हमें उस स्टूडेंट्स को उस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा जैसे कि वो सही में एग्जाम हॉल में बैठा है और वो एग्जाम दे रहा है और हम उसे वॉच कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस टाइमर प्लस प्रॉक्टर की सेटिंग्स देखते हैं। अब ये सेटिंग्स में look at this, this is the setting, this is the first here are two options, that is enable timer, enable proctor. So we have the option, if we want only the timer then timer, if we have the means proctor plus timer, so we click on this enable timer plus proctor. Okay, now if I'm enabling this, so after enabling this we have this link, test link, so autoproctor.text link. तो ये जो टेस्ट लिंक है, ये टेस्ट लिंक हमें स्टूडेंट को प्रोवाइड करनी है, ना कि हमने इसके पहले जो सेटिंग्स में जाके जो लिंक देखी थी, सॉरी सेंड में जाके हमने जो लिंक देखी थी वो लिंक हमें नहीं सेंड करनी है, हमें ये लिंक सेंड करनी है स्टूडेंट्स को। जब हम ये लिंक सेंड करेंगे सो दिस ऑटो प्रॉक्टर और टाइमर प्लस प्रॉक्टर विल बी ऑन, और ऑन होने के बाद फिर वो जो उसके फंक्शंस है वो फंक्शंस वो चालू कर देगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। यहाँ लिखा है अराउंड 10% ऑफ योर स्टूडेंट वोंट बी एबल टू टेक द टेस्ट इफ यू डोंट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। हमें ये इंस्ट्रक्शन पढ़नी ही जरूरी है, बिकॉज कि अगर हमने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं और हमने स्टूडेंट्स को बोला नहीं, तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में 1 मिनट ये फॉर्म को स्क्रॉल करता हूँ और इसका प्रीव्यू हमने देखा था, 1 मिनट में प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। अब इस प्रीव्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पे सबमिट ऑप्शन है। अब जब ऑटो प्रॉक्टर हमें ऑन करेगा, हम ऑन करने के बाद जब ऑटो प्रॉक्टर की लिंक या टाइमर प्लस प्रॉक्टर की लिंक जब हम स्टूडेंट को सेंड करेंगे तो उसके बाद दो ऑप्शंस आएंगे, एक ये सबमिट, दिस इज ओरिजिनल सबमिशन, और इसके ऊपर एक और लिंक रहेंगी जब वो फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे एक और आएगा
अपर साइड में जहां पे सबमिट होगा, तो उसे दोनों तरीके से सबमिट करना है फॉर्म को, तभी जाके वो हम वो कंप्लीटली जो भी टेस्ट होगी वो कंप्लीटली सबमिट होंगी। अदरवाइज उसने एक ही सबमिट किया, ऊपर का सबमिट नहीं दबाया, तो वो टेस्ट कंप्लीटली सबमिट नहीं होंगी। सो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन हमें उस स्टूडेंट्स को देने हैं। ओके, सो लुक एट दिस, द थिंग्स टू नो। नो फाइल अपलोड क्वेश्चन इन गूगल फॉर्म, फाइल अपलोड का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए गूगल फॉर्म में। उसके बाद शेयर द इंस्ट्रक्शन विद स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल द इश्यूज स्टूडेंट्स फेस्ड कैन बी अवॉइडेड इफ दे रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है और हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शंस है। ये देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट क्लिक ऑन बोथ सबमिट बटन्स, दो सबमिट बटन आते हैं, दोनों को सबमिट करना है, एल्स देयर आंसर विल बी लॉस्ट। अदरवाइज उन्होंने अगर नहीं सबमिट किया तो उनके आंसर्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। As mentioned in the instructions above, there are two submit buttons with auto proctor. If the student doesn't click the purple button, all the answers will be lost. अगर वो नीचे की गूगल फॉर्म की बटन सबमिट करता है और ऊपर जो ऑटो प्रॉक्टर की बटन है सबमिशन की, वो अगर प्रेस नहीं करता है या क्लिक नहीं करता है, तो उसके आंसर्स लॉस्ट हो जाएंगे, उसके आंसर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सो ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है, ये जब हम ऑटो प्रॉक्टर एड ऑन करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसे ये इंस्ट्रक्शन बताना बहुत जरूरी है। Because these instructions, if they not read this instruction, their paper cannot be accessed. And students need to log out all of their Google accounts. Sometimes students may see blank page that see the browse. Why? Because कि सब Google account से उसे log out इसलिए करना है, because कि वो दूसरा अगर टैब ओपन करता है तो वो टैब वो कंसिडर कर लेता है कि अदर टैब है या कोई तो भी दूसरा टैब है, और ये दूसरा टैब का यूज करके आंसर देने का मीन्स ट्राई कर रहा है। सो फॉर दैट पर्पस उसने क्या करना चाहिए कि सभी टैब को लॉग आउट करने के लिए सिर्फ ऑटो प्रॉक्टर या जो टेस्ट है उस टेस्ट को ही ऑन रखना चाहिए। तो दीज आर द ऑप्शंस। तो मिनट, ओके देन, सो ये इंस्ट्रक्शन तो हो चुकी है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, देखिए दिस इज द टाइमर। अब यहाँ पे हमने उस पेपर को कब चालू करना है, दिस इज द स्टार्ट डेट, कौन से उस डेट पे कौन से टाइम में चालू करना है, दिस इज द स्टार्ट टाइम। आफ्टर दैट एंड डेट, देन एंड टाइम। तो सपोज सेम डेट में अगर है क्वेश्चन तो सेम डेट ही लिखेंगे हम। टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है, सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9:30 to 10 AM और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 AM to 1 PM. So like that we can give the timing. So this is the start time option, this is the end time of end date, end time option. ये सब होने के बाद we go to the update setting option. हमें अपडेट सेटिंग के ऊपर जाना है। उसके बाद दिस इज ऑटो क्लोज टेस्ट, कि जैसे टाइमिंग ओवर हो जाता है, टाइमिंग ओवर होने के बाद दिस ऑटो क्लोज टेस्ट ऑप्शन, यानी जो पेपर रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हमें उसे बताने की जरूरत नहीं कि लास्ट 10 मिनट्स है या 4 मिनट्स है। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, प्रॉपर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। तो दिस इज अ प्रॉक्टर ऑप्शन। ये प्रॉक्टर ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो लुक एट दिस, वो क्या क्या ट्रैक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टैब स्विचिंग, यानी अगर वो दूसरे टैब में जाके गूगल में जाके अगर क्वेश्चन सर्च कर रहा है तो ये भी वो मॉनिटर करेगा। उसके बाद कैमरा, कैमरा हमेशा ऑन रखना चाहिए, वो भी वो मॉनिटर करेगा। उसके बाद माइक्रोफोन की जो नॉइज लेवल है वो भी वो डिटेक्ट करता है कि कोई उसके बाजू में उसे कुछ प्रॉम्प्ट तो नहीं कर रहा है, कोई क्वेश्चन तो आंसर तो नहीं बता रहा है, ये भी वो प्रॉम्प्ट मीन्स डिटेक्ट करता है या ट्रैक करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। देन फोटोज एट रैंडम, मीन्स एट अ टाइम अगर दो लोगों के फेस मॉनिटर पे दिख रहे हैं या तो उस कैमरा में दो लोग दिख रहे हैं तो वो भी वो मॉनिटर करता है। एंड अगर वो नेक मूवमेंट या उसकी आईज मूवमेंट भी डिटेक्ट करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन जो है दैट इज मी आफ्टर द टेस्ट, टेस्ट खत्म होने के बाद बताना चाहिए हमें कि उस स्टूडेंट ने या उस पार्टिसिपेंट ने टेस्ट कंप्लीट कर चुकी है। एंड दिस यूज ड्यूरिंग द टेस्ट, हम ड्यूरिंग द टेस्ट भी कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है या ये जो एड ऑन है, दिस एड ऑन इज विद द हेल्प ऑफ अटैच टू द गूगल फॉर्म। और इस एक बार ये गूगल फॉर्म से अटैच हो चुका है तो हम जब वो लिंक जो आती है उस लिंक को ही हमें सिर्फ सेंड करना है, और उस लिंक सेंड करने के बाद जो भी आपका हेडेक रहेगा वो सब ऑटो प्रॉक्टर
हैंडल कर लेगा. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एड ऑन फॉर द टीचर्स कि अगर हमें मीन्स प्रॉपर या एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में अगर हमें टेस्ट लेनी है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कंडक्ट द टेस्ट, और हमें ऐसा भी लगेगा कि हमने सही में एग्जाम हॉल में बैठ के टेस्ट मीन्स मॉनिटर किया, ऐसे हमें फील आएगा. ओके, सो एड ऑन्स को जो होते हैं, अभी द क्वेश्चन इज लाइक दैट कि आ सकता है कि भाई ये एड ऑन आया किस तरह है करके. मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमने यहाँ 3 जो डॉट्स थे, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ जो ऑप्शन है एड ऑन्स, ये एड ऑन्स के ऊपर हम गए थे, और ये एड ऑन्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक वर्क स्पेस ओपन होता है. दिस इज गूगल वर्क स्पेस, और जैसे ये फॉर्म रेंजर है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखिए टाइमर प्लस प्रॉक्टर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख चुका है, तो ये तो इंस्टॉल ही बोलेगा. तो फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर्म रेंजर के ऊपर जस्ट आपको क्लिक करके बताता हूँ. जैसे मैंने इस फॉर्म रेंजर के ऊपर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये इस तरह ओपन होता है. देखिए फॉर्म रेंजर, अब यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन है, हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं. इंस्टॉल करने के बाद वो गूगल जो आपका जीमेल अकाउंट है वो पूछेगा, सिर्फ आपको आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और इंस्टॉल हो जाएगा. इंस्टॉल होने के बाद वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, ये आप कहाँ चेक करेंगे, तो मैं आपको ये बताता हूँ. ये देखिए, ये जो पजल सिंबल है, इस पजल सिंबल के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने में देखिए यहाँ पे इतने एड ऑन्स आ चुके हैं. सो दीज आर द एड ऑन्स दैट इज फॉर द सर त्यांना सांगा की पहिले हे नाही राहत, हे जे ऑप्शन आहे हे पहिले नसतं, आणि मग आपण एक एक ऍड ऍड करत गेलो की मग ही सगळी लिस्ट दिसते. अदरवाईज ते लोक शोधत राहतील की त्यांच्या नवीन गुगल फॉर्म्स मध्ये हे दिसणार नाही ना काहीच. हो हो हो. येस येस, तर ते त्यांना थोडंसं म्हणजे जे नवीन बिगिनर्स आहेत त्यांना तेवढं हा, आयडिया हा. येऊन जाईल. चालेल मॅडम, आपण क्वेश्चन घेऊन घेऊ का मग आता हो, थोडेसे काही डिफिकल्टीज असती, कुछ डिफिकल्टीज अगर आपको है यहाँ तक तो आप पहले पूछ लीजिए. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स अगर है तो आप सर के साथ डिस्कस करिए, देन वी विल मूव फर्दर. नहीं तो एक साथ बहुत सारी चीजें हो जाएगी. हेलो हॅलो सर. एक एक हाँ, जण बोलो. विचारा, एक एक जण विचारा प्लीज. किशोर सर पूछिए. हाँ सर, हाँ बोला. मुझे ये पूछना था सर, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट्स में के मैथमेटिकल क्वेश्चंस है हम्म. तो आप गूगल क्विज में आप उसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं क्या? मैं अभी अभी आगे वही बताने वाला था, आपको बताता हूँ मैं. ओके ओके. सर पुढे कव्हर करणार आहेत सर ते कसं करायचं तर. ओके ओके, चालेल चालेल. हाँ हाँ, नेक्स्ट हेलो किसी सर. को. येस पूछिए. हा सर मॅडम, मोबाईलवर आपण करू शकतो का हे? हो 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 मॅडम. होता ही येईल जी ना? लिंक आहे ऑटो प्रॉक्टरची, ही लिंक तुम्ही त्यांना त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सेंड करू शकता, आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर सेंड केल्यानंतर ते मोबाईलवर अटेंड करू शकतात मॅडम. हो का? आणि गुगल फॉर्म वगैरे आपण मोबाईलवर तयार करू शकतो? हो 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 मॅडम. गुगल हे फॉर्म सगळे सुद्धा ऑप्शन येतात मोबाईल. का सर? हो हो तुम्ही हो सांगितले येतील सगळे मॅडम. ऑप्शन येतात. ओके सर, ठीक. सर एक क्वेश्चन आहे. हा बोला. सर हे ॲडॉन जे आहेत हे गुगलचे ऍप्लिकेशन आहे की थर्ड पार्टी ऍप्लिकेशन? नाही नाही सर, गुगलचेच आहेत ते. कारण त्यांचे नाव वेगळे, टायमर प्रोजेक्ट, डॉक्टर सर्टिफाय, हे जे गुगल. सर ते, हा मी बोलतोय. सर ते कसे आहेत, ते ज्यांनी बनवलेले आहेत त्यांनी याच्यासोबत गुगल फॉर्म सोबत असोसिएट केलेले आहेत. आता हे तर टायमर प्लस प्रॉक्टर आहे. आता तुम्ही इथं पाहू शकता, थांबा मी तुम्हाला दाखवतो. प्रत्येकाच्या काही ना काही लिमिट्स आहेत पहा. रिमेनिंग 39 आणि 39 ओनली टाइम, आणि 43 टाइम अँड प्रॉक्टर टेस्ट रिमेन. आता 43 टेस्ट संपल्यानंतर या फ्री टेस्ट दिलेल्या आहेत. याच्यानंतर समजा तुम्हाला काही ते टेस्ट घ्यायचे असतील तर त्या तुम्हाला परचेस करावे लागतील. मग हे जे ऑप्शन आहे म्हणजे ऍड ऑन जे आहे ते लायसन्स कॉपी घ्यावं लागेल. ओके सर. कारण तो परमिशन मागतो. असं परमिशन मागतो ना, म्हणून म्हटलं की तो गुगलचा प्रोडक्ट आहे का थर्ड पार्टी ऍप आहे? नाही, परमिशन म्हणजे सर आपली आपली परमिशन मागतोय तो. हा आपल्याला इन्स्टॉल करायचा आहे ना, तर आपली परमिशन मागेल तो. बरोबर आहे. हो हो.
म्हणजे आपण त्याला सगळे काय ते सगळं अनेबल करून दिलं तर तो तेव्हा इन्स्टॉल होईल. असं नाही की कोणी दुसऱ्या म्हणजे तुमचाच ईमेल अकाउंट राहील, तुमचंच जीमेल अकाउंटवरच तो म्हणजे इन्स्टॉल होईल. आणि सर हे जे ऑप्शन दिसतात जसं मी आता क्लिक केलं ऍड ऑन्स, तर हे माझं जीमेल अकाउंट आहे. माझ्या जीमेल अकाउंटमध्ये मी एवढे ऍड ऑन्स ऍड केले आहेत. समजा तुम्ही माझ्या लॅपटॉपवर बसून तुमचं जीमेल अकाउंट ओपन केलं, तुम्हाला हे दिसणारच नाही. नाही कारण right. कसं पर्सनल आहे. हा, पर्सनल आहे ते. तर Right. तुम्हाला तुमच्या जीमेल अकाउंटवर जाऊन तुमचा गुगल फॉर्म डिझाईन करून तुम्हाला हे ऍड ऑन्स ऍड करावे लागतील. म्हणून तो परमिशन घेतोय. Thank you, sir. ओके सर. आय थिंक प्रॉक्टर प्लस टायमर क्लिअर झालं सगळ्यांचं. तर वी आर मुव्हिंग टू अनदर ऍड ऑन. दिस इज IPTcheck Create. Just refreshing this. For this question. So this is again another add-on for the IPTcheck Create. So this add-on is for the जसं आता एक आय थिंक इंगुले सरांनीच विचारलं मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स कसे ऍड करता येईल आपल्याला. सो दिस इज इन्सर्ट एडिट. हिंदी और इंग्लिश प्लीज. या मॅम. सर हिंदी आणि इंग्लिश यूज करा, कारण की काही हो हो हो. कर्नाटक आणि बाहेरचे पार्टिसिपेंट्स आहेत. सो Okay, प्लीज okay. यूज हिंदी प्रेफरेबली आणि इंग्लिश. Okay, ma'am. Okay, so this is another add-on for the mathematical fraternity. So this, with the help of this add-on, we can insert the mathematical equations directly in the Google form. So for example, this is sine. I'm taking just sine plus then so x. So if I want to add this equation in our Google form, so just this IPTcheck Create add-on is basically made for the adding the equations in the PowerPoint presentation like Google Slide and Google Form or Google Docs. So therefore, in Google Form, how we add the equation? There are different methods for Google Sheet, Google Slide and Google Docs. So this method, now I'm telling the method for the Google Form. So therefore, if I'm writing this equation, मैंने ये equation लिख लिया है. अब लिखने के बाद, after writing this, I'm just click on this create link. Look at this. This is the option of the create link. यहाँ पे हम जाते हैं. This is new math, previous math, and this is blue color. That is a create link. So now I'm click on this create link. After clicking on this create link, the link is successfully copied. Look at this. This is link is successfully copied लिखा हुआ है. अब ये लिंक कॉपी करने के बाद हमें जहां इसे पेस्ट करना है, सपोज हमें जहां इक्वेशन लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लोज कर देता हूं. क्लोज करने के बाद सपोज दिस इज अ क्वेश्चन और यहाँ पे हम ये जो है यहाँ देखते हैं हम, दिस इज बाय URL. तो ये जो लिंक है हम यहाँ पेस्ट करनी है. ये हमने लिंक पेस्ट कर दी है. पेस्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे sin 90 प्लस अंडर x y ये आ चुका है. ठीक है. सो जो लिंक हमने कॉपी की है वो लिंक कॉपी करने के बाद मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन में अगर हमें ऐड करना है तो यहाँ पे हम इस इमेज के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे. इस इमेज के ऊपर जो ऑप्शंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड ऑप्शन है, कैमरा और बाय URL. तो बाय URL के ऊपर जाएंगे हम. यहाँ पे क्लिक कर पेस्ट करते वो लिंक जो हमने लिंक IPTcheck Create से ली थी, वो लिंक
we are pasting here, and after pasting here, this is the option that is insert image. So I am clicking on this insert image option. ये देखिए insert image, तो वो जो भी है वो यहाँ आ चुका है. देखिए, look at this. This is the equation. So in this way we can write the equation with the help of this hypertesia create add-on. Once again I am repeating. This is, अब ये जो एड ऑन है, ये एड ऑन मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं. आपको अगर लेने हैं तो आप यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर जाएंगे, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देंगे. दिस इज एड ऑन. आफ्टर क्लिक ऑन दिस एड ऑन्स, यहाँ पे आपको टाइप करना है. ये देखिए हाइपरटेशिया क्रिएट करके आ गया है. तो मैंने यहाँ पे सर्च में हाइपरटेशिया क्रिएट कर दिया है, और ये हाइपरटेशिया, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं. क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल करके बता रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है. अगर मैं इंस्टॉल करता नहीं तो यहाँ पे वो इंस्टॉल का ऑप्शन देता नहीं. फिर यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करते हैं. इंस्टॉल करने के बाद वो कहाँ इंस्टॉल होता है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं. अगर वो इंस्टॉल हो चुका है तो हम इस पजल सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं. इस पजल सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद वी हैव दिस टाइप ऑफ द ऑप्शंस. तो हमें यहाँ दिख जाता है कि ठीक है, ये हाइपरटेशिया क्रिएट आ चुका है. अब यहाँ पे आने के बाद फिर हम इसे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद वो अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो हमें इसे रिफ्रेश करना है, इस फॉर्म को, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए यहाँ पे हाइपरटेशिया क्रिएट आ चुका है. और यहाँ पे आने के बाद दिस इज इंसर्ट एडिट मैथ, this is mini editor, re-enable all notifications. So these are the settings of the hyperteacher create. We are clicking on this insert edit math. So now we got this type of the dashboard or interface of the hyperteacher create, and whatever equation you have to write, we have the number of options. Look at this. This is, I'm clicking on this. So these are the options. Then I'm clicking on this sign tab. So these are the options: trigonometric, calculus, algebra options. Then this is plus minus sign. So these are the inequalities, binary relations, binary operators. So whatever formulas you have to write, with the help of this, you can write. Look at this. These are the options. तो हमें क्या करना है कि हमें जो भी ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ सपोज ये ऑप्शन, और यहाँ पे हमें लिखना है x, यहाँ लिखना है हमें y, x by y. और ये लिखने के बाद फॉर एग्जांपल दिस इज प्लस एंड माइनस. सो इक्वेशन हमने लिख दिया है. ये इक्वेशन लिखने के बाद हमें इसे किस तरह पेस्ट करना है. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द क्रिएट लिंक ऑप्शन. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस क्रिएट लिंक ऑप्शन. क्रिएट लिंक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लिंक इज सक्सेसफुली कॉपीड टू क्लिपबोर्ड. यूज इंसर्ट इमेज बाय यूआरएल. वो ऑलरेडी बोल देता है कि हमें कहाँ जाना है. सो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ. आफ्टर क्लोजिंग दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं. Heading next question. So here is the image option. I am clicking on this image option. Then upload camera by URL. So I am pasting the URL here. Pasting this. Look at this. This is insert image option. So now the option is here, that is insert image x by y plus log x. So इस तरह इक्वेशन ये आ जाएगा. ओके, अब ये इक्वेशन किस तरह दिखेगा. सो वी आर गोइंग इन द प्रीव्यू. प्रीव्यू में हम जाते हैं, और प्रीव्यू में जाने के बाद देखते हैं कि वो इक्वेशन किस तरह दिखता है. लुक एट दिस. दिस इज sin 90, दिस इज अगेन. सो इस तरह ये ऑप्शंस, या इस तरह हम मैथमेटिकल फॉर्मूले इंसर्ट कर सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोला. सर
हाँ बोलिए सर। हमने ये हेलो। क्वेश्चन में तो ले लिया सर, लेकिन अभी इसका जब आंसर ऑप्शन देंगे हम तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना हाँ 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 यस सर। है। और सर केमिस्ट्री के जो रहते हैं केमिस्ट्री। diagram, हाँ केमिस्ट्री के डायग्राम के लिए कोई और एड ऑन है कि इसमें ही हो सकता है? सर केमिस्ट्री के लिए एक स्पेशल एड ऑन है, दैट इज कैम्प। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ केमिस्ट्री के एक स्पेशल एड ऑन है सर। हाँ बोलिए। डिस्टर्बेंस हाँ सांगा ना। सर कैम फोरिया करके एक ऑप्शन है केमिस्ट्री के इक्वेशंस के लिए स्पेशल। कैम वो फोरिया। एड ऑन, हाँ वो एड ऑन हमने मीन्स अभी तक फिलहाल इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली गूगल डॉक्स में अगर उसे लिखना है तो आप वहां से, मीन्स दिस इज अ वेब बेस्ड सर्विस सर। वो वेब बेस्ड सर्विस है, हमें उस वेब बेस्ड सर्विस के ऊपर इक्वेशंस लिखने हैं और वो इक्वेशन वहां से कॉपी करके वो इमेज फॉर्म में होता है और फिर हम उसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो वो गूगल डॉक्स तक के है। गूगल फॉर्म्स में मैंने अभी तक उसे ट्राई नहीं किया है सर, लेकिन गूगल सर डॉक्स में हो जाता है वो। हाँ बोला। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए वो सर। एग्जांपल करके दिखाइए ना केमिस्ट्री का। सर इथं ट्राय नाही ओके, केलंय मी, चालेल. तेच म्हटलं मी। हाँ तो ऐड ऑन कर लो ना सर। सर वो गूगल डॉक्स में सर ने करके देखा है, तो सर जब गूगल डॉक्स बताएंगे उस वक्त सर उसको हाँ कवर करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ थैंक यू मैम। साइंस के लिए वो मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का जरूर रहता है उसमें। येस येस, सर जेव्हा गूगल और डॉक्स शिकवतील ना त्यावेळेस सांगतील. हाँ, चालेल चालेल आणि बायोलॉजी झू किंवा बॉटनीसाठी डायग्राम मस्ट राहतात. येस येस येस. हा तर हे पण कव्हर झालं तर ओके होईल. ओके, करतील सर. हो. ओके. एनी क्वेश्चन? हेलो सर. हाँ बोला। एक्सक्यूज मी सर. या मॅम। हॅलो. या यू आर ऑडिबल मॅडम। हां मॅडम, ऍक्च्युली सर तुम्ही जे म्हटलं हे हायपेटिटिया क्रिएट हे इन्स्टॉल झाल्यावर आपला त्या 3 डॉटवर क्लिक केल्यावर ते दिसेल का आपल्याला ऑप्शन ते तिथे? मॅडम ह्या पझल सिम्बॉलवर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर दिसेल इथं, आणि तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं असेल तर यू कॅन इन्स्टॉल फ्रॉम दिस 3 डॉट्स. हां सर, ऍक्च्युली मी इन्स्टॉल केलं. तुम्ही सांगितलं सायमल्टेनियसली मी इन्स्टॉल केलं, तर ते दिसेल कुठे ते ऑप्शन? या गुगल सॉरी या पझल सिम्बॉलवर गेल्यानंतर मॅडम इथे ऑप्शन्स येतील पहा, इथे लिहिलं असेल तुमचं असं. हां, इन्स्टॉल म्हणून लिहिलं येतंय. नाही असे नाव आलेत का मॅडम? These are the list of the add-ons. So in that list, there should be name of the Hyperteacher Create. हां, Is तर ही it? लिस्टच कुठनं येते सर ही लिस्ट? दिस पझल Madam, using सिम्बॉल. this- ओके ओके. ओके ओके, ठीक आहे सर, ठीक आहे. थँक्यू सर. Okay. हेलो. हेलो सर. Yes, ma'am. सर एक पूछना था कि अगर हमारे पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो कॉपी पेस्ट होता है क्या इसमें हाइपेटिया में? मैडम आप हाइपरटेशिया में लिखने वाला इक्वेशन बाहर लिख रहे हैं डॉक से या डॉक से हाइपरटेशिया में? हाँ, डॉक से हाइपेटिया में नहीं मैम। नहीं होता है. अच्छा ठीक है, वहां पर नया इक्वेशन इनको क्रिएट करना पड़ेगा. ओके सर, थैंक यू. सर ये फॉर्म ऑटो सेव होता है क्या, अगर मैं हाफ फॉर्म बनाऊं और हाफ बाद में बनाऊं? या मैम ये देखिए यहाँ लिखा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव. ओके सर. वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है मैम. ओके सर, ओके, थैंक यू. Hello. Hello. Sir, excuse me, sir. Hello. हाँ बोला. Sir, I am audible. Yes sir, you are very much audible. Sir, if I make the Google form in a laptop, so how can I send in mobile, sir? एक ओके सर, आई एम सर ते वेब व्हॉट्सअप वाला एक सांगून द्या सायमल्टेनियसली, किंवा काही दुसरं ऑप्शन असेल तर.
अच्छा 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 सर अगर आपके पास व्हाट्सअप होगा सर। हेलो। ओके सर, हाँ या हाँ अगर सर आपकी तरफ व्हाट्सअप अगर होगा तो आप व्हाट्सअप लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सअप वेब। ओके ओके ओके। और ये जो मैं सेंड की जो लिंक है, इस सेंड के ऊपर क्लिक करने और ये जो लिंक आ रही है, आप ओके इस लिंक को कॉपी कर दीजिए ओके एंड आफ्टर कॉपिंग दिस यू कैन पेस्ट इन द व्हाट्सअप। जो ओके आपके ग्रुप्स है, स्टूडेंट्स के ग्रुप, वहां पेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स डायरेक्टली वो फॉर्म चला जाएगा। that means I have to open WhatsApp in a laptop also. या ऑफ कोर्स। Oh yeah. या अदरवाइज आप एक काम कीजिए, यू Okay. कॉपी दिस लिंक एंड शेयर टू योरसेल्फ एंड योर ईमेल। आप खुद को ईमेल कर दीजिए और वो लिंक Okay. फिर मोबाइल में ओपन करके फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं सर। Okay. 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 Thank you, sir. गायकवाड सर, यस हेलो, यस सर। इंगोले सर स्पीकिंग. Sir, please focus on how can generate e-certificate on Google Form. Yeah, of course, sir. So it takes more than 45 minutes time, sir. Can I? Then other means slides, sites, वो रह Sir. जाएगा सर हमारा फिर। फ्रेंड्स, आप लोगों को वो सभी को चाहिए सर्टिफाई एम वाला, सो अकॉर्डिंगली वी विल प्लान. हा हा ओके ओके मॅम. सर मग आपण ते घेऊया आता आणि मग आज जेवढं होईल तेवढं कव्हर करू, मग वाटेल तर नेक्स्ट अजून सेशन्स ठेवूया. ठीक है चालेल चालेल मग सर. चालेल. सर्टिफाय घ्यायचं का मग आता फ्रेंड्स, आपको वो Certified. चाहिए अभी सर्टिफिकेट वाला? की नंतर घेऊ सर्टिफिकेट आपण? वाला कवर करना मैडम. ठीक है. ओके. सर्टिफिकेट वाला कवर कर देना. जी 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 सर. कुणाल सर, सर्टिफिकेट वाला आता घेता येईल का? घेता येईल मॅडम, पण आपण मग आता जे आपली जी थीम सुरू आहे ऍप्सची, हा. ती डिस्टर्ब होऊन जाईल मग. अच्छा. चालेल चालेल. फ्रेंड्स, Go पहले through your आपण theme, sir. yes, first we will go with the planned one and then we will Yeah. continue Yes. in other section or other session also. Okay okay okay. Okay? It's Yes sir, please continue. फ्रेंड्स, आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या 5-10 मिनट का, कि कंटिन्यू करते हैं? कंटिन्यू करू मॅडम. गायकवाड सर से पूछ लीजिए मॅम. कुणाल सर, ब्रेक घ्यायचा आहे 5-10 मिनिटाचा की कंटिन्यू करायचं? ओके मॅडम, आपण 10 मिनिट्सचा ब्रेक घेऊ. ओके कंटिन्यू करू. ओके ओके, मग डायरेक्टली गुगल स्लाइडवर चालले जाऊ. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. फ्रेंड्स, मीटिंग को लीव मत करिए, जस्ट टेक रिफ्रेशमेंट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड प्लीज कम बैक. Okay, madam. मीटिंग नहीं रही है, लीव मत करिए.